Dear IAS aspirants, Masters IAS invites you to join a webinar on a master's strategy to qualify prelims 2021 under the guidance of Dr. SM Azad Delhi. What you will be getting in this webinar: what is the emergent need to qualify UPSC Civil Services Preliminary Examination? A detailed research-based analysis of previous papers of 10 years. A secret master's strategy to succeed. What approach should be there with respect to recent trends? Time management. A game-changing factor. Webinar will be organized on 5th of May at 11:45 a.m. How to register for a webinar? To get registered, you need to visit our official website www.mastersis.in and fill up the contact information form, then text to WhatsApp helpline number and get confirmation. Once registration is completed, you will receive a webinar link. Join Masters IAS and learn from top masters under the leadership of Dr. SM Azad. Dr. SM Azad have done MA, MPhil, and PhD from JNU Delhi, and he is having experience of more than 10 years of mentoring IAS aspirants all over the country. He is erstwhile senior mentor of Vision IAS and editor-in-chief of one of the current affairs magazine. We offer following courses and services for IAS aspirants: crash course for UPSC Prelim, foundation and full-length course, test series, study material, personal mentorship, answer writing program. Also, we offer mentorship for optional subjects: agriculture, anthropology, history, political science, management, test series for prelims main examination, essay and ethics, mock interviews, personal mentorship program PMP. For more information, visit our official website www.mastersis.in. Subscribe to our YouTube channel and enjoy free lectures by top masters of Delhi. Contact our WhatsApp helpline number 913-094-0293 for any query regarding UPSC exam. For personal mentorship program, visit website vikasvvgaikvad.com and click on personal mentorship page. Join us and success guaranteed. Thank you. देखते हैं इनको कहते हैं कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं देखता हूँ सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, देखते हैं। ठीक, ये औरंगाबाद से अमोल तो जुड़ चुका है। कोलकाता से है, हाँ। ओके, अब मैसेजेस जो देना है देते चलो बच्चों को। रॉबिन भी जुड़ गया है नासिक से। हाँ, नासिक से।
Good morning, sir. Okay. आजाद सर, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो रॉबिन? हाउ आर यू? फाइन सर। फाइन। Be ready for cracking the UPSC examination. Possibilities may be that date may be extended, but you have to be sure about that this time that you should have to go with the cracks. है ना? Yes, sir. संभावनाएं हैं कि हो सकती हैं, लेकिन पूरा विश्व संभावनाओं पे चल रहा है। सो यू ऑल हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। और आप लोगों को मैं देख करके बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी त्रासदी हुई है। मेनी मोर problem has been taken place, but you people are safe and healthy. It is a big gift for me. Okay, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी हेल्दी नजर आएंगे पूरी तरह से। और ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए मैंने इसीलिए शुरू किया है कि आप सभी के सभी हेल्दी रहें, खुश रहें, और अपने किसी भी एग्जामिनेशन पैटर्न को आप कभी भी कमजोर मत होने। जी सर। है ना? हाँ। और बिल्कुल क्लास की तरह अट्रैक्ट होना है, क्लास की तरह ज्वाइन करना है, सवाल जरूर करने हैं, आंसर जरूर दूंगा, अपने सारे के सारे डाउट्स को जरूर क्लियर कीजिए। सैयद जावेद भी जुड़ चुके हैं, है ना? आमूल औरंगाबाद से जुड़े हैं। कैसे हो आमूल? बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे हो। लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है, या दूसरा साल है मिस्टर आमूल। मेरी आवाज को सुन रहे होंगे आप लोग बहुत। कोलकाता से सुरभि भी है, सैयद जावेद भी है। वेरी गुड टू सी दैट। जी सर। हाँ, वेरी गुड। हाउ आर यू मिस्टर जावेद? आर यू वेल? एंड गुड मॉर्निंग सर। अमोल बात कर रहा हूँ सर, औरंगाबाद से। हाँ, औरंगाबाद। कैसे हो अमोल? एग्जामिनेशन देना है ना अमोल? जी सर, बढ़िया हूँ। आप कैसे हो सर? हाँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। बहुत कुछ प्रयास करने के बाद आप हूँ। बिल्कुल अमोल, ठीक है, ठीक है। जी और सारे बैचमेट कैसे चल रहे हैं? ठीक है ना? रघु कुशवाहा जयपुर से। कैसे हो रघु? हाउ आर यू? रघु जयपुर, वेरी गुड। हाउ आर यू रघु? आर यू ओके? Yes, sir, I'm good. How are you? I'm fine, thank you. And how all the colleagues of the IAS Academy, how are they? Sir, all are well. All doing good. Chaliye, that's good. That's good. That's good. Because I think the thing that should be. Okay. अच्छा। Shakir Mudassir from, he is from Bidar, Karnataka. He is from Bidar, Karnataka.
So I think we should start it because जी सर। yes, PPT should be clear with that too. Hmm. PPT is the problem over here. Okay, done. It is okay. और मैं इस पे भी आ गया मोबाइल पे, अब मैं शुरू कर रहा हूँ, नो इशू। हेलो, ओके, वेलकम टू ऑल। सबों को बहुत बहुत नमस्कार और सबों को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ज्वाइन करने के लिए, पेन लेने के लिए। और बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने का जो एकमात्र उद्देश्य, जो मेजर ऑब्जेक्टिविटी है, वो यह है कि इतने दूर दराज में बैठे हुए लोगों के साथ में बहुत सारी समस्याएं आई हैं, बहुत सारी समस्याएं आई हैं।
और इस समस्याओं को समाधान करने के लिए मेरे बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, और बहुत सारे जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे इस चीजों को जानते हैं और मुझे इसे बताने की आवश्यकता नहीं है. आई डोंट फाइंड एनीथिंग टू एक्सप्लेन अबाउट मी. So what I am, what my potentiality is, you can find it from my approaches, from my strategies of ideas of discussing the whole thing, and whatever the methodology I have adopted regarding that. आप लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं या चीजें नजर आ रही हैं और जो मैंने अपने तजुर्बे, इट इज इकोइंग हो रहा है, आवाज इको हो रहा है, उसको ठीक कर लेने का, आवाज इको हो रही उसको ठीक कर लें. ठीक है, ओके ओके, नो इश्यू. हाँ, काफी डिस्टेंस है, ओके, नो इश्यू. तो जो अभी सबसे बड़ा चैलेंजेस है, जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है, आप अभी भी आ रहा है, चैलेंजेस सबसे बड़ा क्या है, जिस चीज को आप सभी को ध्यान देना है, आप सभी के लिए एक्चुअली क्या है, ये वॉक्स पॉपुली इसे माना जाए, और जो मैं अभी चीज अभिव्यक्त करने जा रहा हूं, वॉट एवर द थिंग आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट टू यू, it is a holistic approach. It is a combined, you can say, thought process germinating to the mind of yours. और मैंने पिछले 3 साल में एक बहुत बड़ी चीजों को पॉइंट आउट किया है, being my experiences, कि 0.5% भी, पॉइंट सच कहा जाए कि जो स्कोरिंग रेट है यूपीएससी का, उसमें 0.5% भी स्कोरिंग रेट नहीं है. अगर मैं देखता हूं 100 बच्चों में कि कितने बच्चों ने पीटी क्रैक किया है, तो मुझे बहुत मुश्किल से ऐसा लगता है कि शायद एक बच्चा हो, या मैं मान के चलता हूं कि करीब करीब 120 बच्चे में से जो बड़ी चीज मुझे, one of the major things is haunting to me all the time. It is haunting to me. What is that? मैं जिससे भी बच्चों से कुछ पूछता हूं पीटी का क्या हुआ, तो वो बच्चे जवाब नहीं देते हैं, और फाइनली मेरे से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो हमें फील हो जाता है कि डिबैकल जरूर हुआ. और जो सबसे दुखद घटना है वो यह है कि करीब करीब बच्चों के 4 अटेम्प्ट्स बहुत आसानी से खत्म हो जा रहे हैं, और पता ही नहीं चल पा रहा है कि पीटी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, पीटी पास करूंगा या नहीं पास करूंगा. मेरी जो भी बातें हैं, आप लोग पेन और पेपर लेके आप लोग बैठ लेंगे. मैं जो भी बातें बोल रहा हूं आप उसको नोट करो, और जो भी क्वेरीज आपके माइंड में आ रही है उसको सॉल्व करो. क्योंकि ये वेबिनार एक इस पर्पस से नहीं मैंने ऑर्गेनाइज किया है कि मैं अपने बारे में प्रचार करूं, प्रसार करूं, बताऊं कि क्या कर रहा हूं, नहीं. मैं इसके वेबिनार के करने का जो सबसे ज्यादा दुखी हूं, ये मेरी कैपेबिलिटी, दिस इज द मेजर चैलेंज ऑन माय कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियलिटी, that why it has happened that last 3 or 4 years I am unable to produce at least 50 students of mine. एक वक्त था after the period of 2013, कम से कम मेरे प्रीलिम्स के 300 बच्चे हुआ करते थे, तो उन्हें पास कराना आसान था. करीब करीब 40 बच्चे या 30 बच्चों का सिलेक्शन फाइनल हो जाता था. और अभी 4 वर्षों से whatever I am feeling regarding that, I am unable to search it out कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे हैं, बच्चे को कैसे सिलेक्ट कराया जाए. This is the problem with me. So that is the reason why I am appear before you. इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया. जो सबसे बेसिक चीज है नोट कर लेना और सवाल जवाब जरूर करना, एंड डोंट फील लाइक दैट कि वक्त है, समय का कंस्ट्रेंट है कि आज कुछ ले करके जाओ. और मैं ये वादा करता हूं कि if you will follow my footwork, or you can say footpath, the way I am going to teach to you, I am sure about that you will crack the examination. If you fail, that it is the failure of mine, not yours. और जब अगर फेल आप होते हो तो आप मान लेना कि मेरा मेंटोर फेल करके गया, मैं फेल नहीं किया. इस आश्वासन के साथ, इस कैपेसिटी के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूं. एक बेसिक फंडामेंटल चीज अपने दिमाग में रख लो, ये 4 सूत्री कार्यक्रम, इट इज द 4 यू कैन से कमांडमेंट्स ऑफ द सक्सेस ऑफ एग्जामिनेशन. कॉन्सेप्ट जो अपने दिमाग में आप डेवलप करो, एक चीज को लिख लो, बहुत आसान सी चीज है, ये 5वीं क्लास से आपके मन में है, माइंड में है, और अभी आपकी उम्र अगर 20 साल या 21 साल या 25 साल होगी तो वो चीजें अभी भी कन्वेंशनल रूप में बनी हुई हैं. दिस इज कॉल्ड फैक्ट्स. दिस इज कॉल्ड फैक्ट्स.
दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज अपने दिमाग में जो आप रखोगे वो क्या है? दूसरी चीज है कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट 5वें साल से नहीं आता है। कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है जब आपकी उम्र 15 साल हो जाती है, तब आप समझते हो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। तीसरी चीज क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप तब जानते हो जब आप कॉलेज में पहुंचते हो। तो एक परंपरा की शुरुआत होती है। दिस इज द बिगनिंग ऑफ द यू कैन से एप्लीकेशन। मीन्स एप्लीकेशन का मतलब है प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी यानी व्यवहारिकतावाद की बात करते हैं, व्यवहारिकता की बात करते हैं। when you reach to your what we can say colleges, you understand about what exactly is application part, what exactly is what we can say is what the practical part। और practical part में होता क्या है कि हर दिन आपके माइंड में एक कोई भी आती है और दिमाग में ग्लैंड्स डेवलप करते हैं कि व्हाट यू अचीव दैट, और यहीं से प्रोसेस शुरू होता है रिकंस्ट्रक्शन का। और हर एक चीज में अब आप क्या चाहते हो कि रिजल्ट क्या मिला। अब तक आप जो फर्स्ट स्टेज में थे, फैक्ट्स में आप रिजल्ट की तलाश नहीं करते हो, कॉन्सेप्ट में आप रिजल्ट की तलाश नहीं करते हो, लेकिन जहां तीसरे स्टेज में आप पहुंचते हो तो आप रिजल्ट की तलाश करते हो। एंड दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन। इन दिस कंडीशन, इस पीरियड में होता क्या है? आपका मेटाबॉलिक एक्शन चेंज हो जाता है, पूरे बॉडी का भी हार्मोनल चेंज हो जाता है। उस कंडीशंस में क्या देखते हैं कि नॉर्मल जो आप बॉडी एक अच्छे बच्चे या कहा जा सकता है एक भोले भाले बच्चे नजर आते हो, उस भोले भाले बच्चे के चेहरे पे क्या हो जाती है? दाढ़ियां आ जाती हैं, या फिर उनके चेहरे पे क्या है? मूछें नजर आ जाती हैं। एक वो भी चेंज होता है और उसमें बॉडी फिजिकल चेंज होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और इस पीरियड में सबसे बड़ी बात क्या होती है? एडेप्टेशन बहुत फास्ट होता है। आदमी किसी भी चीज को बहुत जल्दी एडेप्ट करना शुरू होता है। और फिर यहीं से आपका मिशन, एम्बिशन और ऑब्जेक्टिविटी की शुरुआत आपकी यहीं से हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट, वी कैन फाइट अबाउट दैट। और यहीं से इस चीज की शुरुआत हो जाती है। और फिर आगे चल के क्या देखते हैं? कॉन्टेम्प्ररी। अब आप ये चाहते हो कि हमें किस स्टेज पे पहुंचना। तो दीज आर द 4 फंडामेंटल थिंग यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। और ये चीज को मैं अभी इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पैटर्न और टीचिंग मेथोडोलॉजीज है, ऐसा नहीं है जिसमें इन सारी चीजों की व्याख्या की जाती है। हम लोग की जो परंपरा है उसमें रूट लर्निंग का प्रोसेस है। किसी भी चीज में जो चीज लिखी है उसी चीज को आपने पढ़ लिया। अगर लिखा हुआ है कि ए फॉर एरोप्लेन होता है तो आप ए फॉर एरोप्लेन ही जानोगे। बच्चा यही कहेगा अगर कोई उसको बताएगा कि ए फॉर एक्रोबेट भी होता है, ए फॉर जो है कि नहीं एरोनॉटिक्स भी होता है, बच्चे उसको नहीं मानेंगे, वो एरोप्लेन को ही मानेंगे। एक कन्वेंशन सी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें दोष आपका नहीं है, एकेडमिक पैटर्न का दोष है। लेकिन इस एकेडमिक पैटर्न में दोष है तो अच्छाइयां भी बहुत है, तो हम लोग उसकी अच्छाइयों पर ध्यान रख करके चले। अब जो सबसे बड़ी जानने वाली बात है, मैं सबों के लिए कर रहा हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि फैक्ट्स क्या है, फैक्ट्स क्या है, और आपको अपने किस फैक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड व्हाट टाइप ऑफ फैक्ट्स यू शुड हैव टू नो अबाउट इट। फैक्ट्स क्या है? पहला सवाल ये उठता है मेरा, व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्ट। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्ट, तो आप जवाब दोगे। सबसे पहला आपके माइंड में जवाब आएगा, वो आएगा कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, ये एक फैक्ट। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी चीज आपके दिमाग में घुसी हुई है, आपके दिमाग में इम्प्रिंट है 1947। और अगर देखा जाए अगर आपकी उम्र 21 साल हो गई है, तो कम से कम 30,000 ऐसे फैक्ट्स आपके पास आएंगे जो आप तुरंत थक जाते हो कि इतनी चीजों को आप रिटेन कैसे करो। ये चीज सही नहीं है। सही क्या है और किस फैक्ट्स को आप जानोगे, और मैं किस फैक्ट की चर्चा करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, जिस फैक्ट्स की बात बताना चाह रहा हूं या आपको जानने हैं, वो क्या जानने हैं? आपको एक कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करो, द फैक्ट्स विच लेड टू द टर्निंग पॉइंट। दैट फैक्ट्स लीड्स टू द टर्निंग पॉइंट। आपको वैसे फैक्ट्स को ध्यान में रखना है जिस फैक्ट से बदलाव आया। ये बदलाव, जो सबसे पहला बदलाव होगा, किस चीज में होगा? आपके जीवन में होगा, आपकी लाइफ में होगा। जो दूसरा बदलाव क्या होगा? वो आपके सराउंडिंग में होगा, आपके सराउंडिंग में होगा।
आपके सराउंडिंग में जो बदलाव होगा उसमें दो चीज होगा, उसका बेनिफिट भी नजर आएगा, उसका लॉस भी नजर आएगा। जैसे एक छोटी सी घटना वर्तमान समय की है कोरोना, जो सामने चीजें नजर आ रही हैं वो क्या नजर आ रहा है? कोरोना। और इसमें 100% लोग की जो वर्तमान समय की मानसिकता बनी हुई है वो क्या है? ये टर्निंग पॉइंट में निगेटिव, ये टर्निंग पॉइंट में निगेटिव है। अब कोई भी आदमी ये फैक्ट्स को नहीं देख रहा है कि उसके आसपास में कितनी घटनाएं घटी, वो कितनी जो निगेटिव घटनाएं घटी हैं उसको पूरी दुनिया से द कंप्लीट वर्ल्ड ही इज गोइंग टू कंपेयर विद द होल वर्ल्ड, होल सिनेरियो। तो ये टर्निंग पॉइंट आया है, ये फैक्ट्स है और ये टर्निंग पॉइंट है। एंड यू विल बी रिमेंबर एज लॉन्ग एज यू अलाइव। आप अपने ही रिमेंबर नहीं करोगे, साथ ही साथ आपके बच्चे होंगे, पोते होंगे, या कोई भी होगा, आप सबों को ये मैसेजेस को सर्कुलेट करोगे। इसी तरह से हम लोगों को भी मैसेजेस सर्कुलेट किए गए हैं कि 100 साल में कोई पेंडेमिक आता है, 100 साल में कोई चेंजेस आता है, कंडीशंस आते हैं, उसको भूला नहीं जा सकता है। वो एक स्टैंडर्ड चीज है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो मेरे कहने का उद्देश्य क्या है? यू हैव टू रिमेंबर दोज फैक्ट्स। आपको वैसे फैक्ट्स को रिमेंबर करना होगा, रिटेन करना होगा जो फैक्ट्स एक टर्निंग पॉइंट के रूप में काम कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखो आप। वैसे फैक्ट्स को आपको रिटेन करना है जो टर्निंग पॉइंट के हो। आप लोग जो नई एनसीईआरटी पढ़े होंगे, इफ यू हैव गॉन थ्रू द न्यू एनसीईआरटी, यू विल फाइंड दैट द डेट्स आर कंप्लीटली ओमिटेड। अब उसमें डेट्स 1757 या 1885 या फिर 1947 जैसा डेट्स उसमें नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? बच्चे सबसे ज्यादा फोकस करते थे कि मैंने 1857 याद कर लिया, मेरे पास सब कुछ, एवरीथिंग इज विथ मी। नो, you have to omit it and you have to keep your attention that what changes has taken place. बदलाव क्या आता है, और जहां बदलाव की अंडरस्टैंडिंग को आपने डेवलप कर दिया तो आपके ऊपर जो हैंगओवर है इतनी चीजों को रिटेन करने का, इतने फैक्ट्स को याद रखिए। ये फैक्ट्स क्या है? ये फैक्ट्स है एक टर्निंग पॉइंट, एक चेंजेस है। जिस दिन आप मैट्रिकुलेशन +2 करते हो वो एक टर्निंग पॉइंट है, वो फैक्ट्स नहीं है। वो याद इसलिए रहता, पहले आपको नहीं याद रहता है कि आपने 1875 में या 2015 में आपने +2 किया। आपको याद क्या रहता है कि आपने +2 कर लिया, और +2 करने के बाद आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बाद आपका जो स्ट्रीम था वो ह्यूमैनिटीज है, या फिर वो साइंस है, या फिर वो कह सकते हैं कि कॉमर्स है। So this facts you should have to retain for this part of that, and this is a very small thing you should have to remember about that. मैं बताता हूँ कि इससे क्या फायदा होने वाला है। तो this fact I think you should have to retain over here, और ऐसे facts को आपको याद रखना है। इसमें डेट कदापि नहीं है। अगर मैं सवाल पूछ दूं आपसे कि कोरोना किस डेट से शुरू किया, कि शायद दुनिया में कोई भी आदमी इस सवाल का जवाब नहीं देगा। लेकिन मैं जब सवाल पूछूं कि कोरोना से सबसे ज्यादा किस कंट्री का आदमी, कहां का आदमी सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है या सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां पड़ा है, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि यहाँ इंपैक्ट पड़ा है। और कोरोना से किस किस बॉडी के कौन कौन से पार्ट को डैमेज किया है ये भी आप बता दीजिएगा। कारण क्या है? कि वो एक टर्निंग पॉइंट है, वो एक चेंजेस का पार्ट है। दैट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट थिंग यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। मैं समझता हूं कि इस फंडामेंटल चीज को आप लोग समझ गए होंगे। दिस इज द फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर। तो आज से ही आप अपने एटीट्यूड के जो चेंजेस आप लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जो लाएंगे, यही लाएंगे। क्योंकि यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ योर एप्टीट्यूड, यूपीएससी इज एन एग्जामिनेशन ऑफ योर टर्निंग पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। इसमें सबसे पहली चीज जो जानेंगे कि आप इस चीज को जानेंगे कि आप किसी चीज को समझते हैं किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट यू आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द होल थिंग, व्हाट वे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट थिंग। किस हिसाब से आप अपने आप को समझ सकते हैं चेंजेस है, किस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आप में परिवर्तन है या कंडीशंस में और चीजें नजर आ रहा है। जस्ट ए मिनट, देयर इज सर्टेन टेक्निकल ग्लिच ओवर देयर, जस्ट ए मिनट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस चीज को मार्क कर। अब सवाल उठता है दूसरी चीज क्या है? कॉन्सेप्ट।
जिसकी समझ आप लोगों को 12 साल 15 साल के आसपास होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट? अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो शायद जितने भी लोग हैं उसमें से कम 15% रेशियो होगी जो उस चीज को समझ पाएगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है क्या? लिसन टू मी केयरफुली। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आती है? इट इज व्हाट? इट इज a kind of understanding. It is a kind of what? Understanding. अंडरस्टैंडिंग का मतलब है क्या है? आपकी समझ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी समझ। आपकी समझ का मतलब क्या है कि यूपीएससी ने क्यों कहा है कि जब आप 21 साल के हो जाइएगा तो आपको इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करना। क्यों यूपीएससी ने ट्रेस किया इस चीज को कि एक आदमी का मेंटल लेवल, एक आदमी का फिजिकल लेवल, एक आदमी की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक आदमी का वर्किंग कैपेसिटी बहुत पावरफुल हो जाती है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 years. So what exactly is this one? This is the factual conceptual approach. वो ये क्या है? ये फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है जिसके तहत हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप करती है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए डेवलप होती है आपकी कि आपका स्टेट ऑफ मैच्योरेशन में है और हर समय हर पल किसी भी चीज का आप हमेशा दो दंडमाप देखते हो कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसका निगेटिव एस्पेक्ट है। कंडीशंस क्या है कि जब आपका ग्रोइंग स्टेज होता है तो हमेशा आपकी ऑब्जेक्टिविटी रिजल्ट ओरिएंटेड चीज की तरफ चली जाती, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज की तरफ चली। और जब रिजल्ट ओरिएंटेड चीज की तरफ जाती है तो आप हमेशा आउटकम देखते हो। और आउटकम क्या है? आउटकम ये बता देता है कि इसके पीछे में कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट है। बिना फैक्ट के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। एक छोटी सी चीज को आप समझ लो। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फूड। मैं क्या बात कर रहा हूं? छोटा सा एग्जांपल, एक फूड बात बोल रहा हूं जिसको कह सकते हैं आप कॉन्सेप्ट है। इस फूड के साथ में सबसे बड़ी विशेषता क्या को देखते हैं आप? एक ह्यूमन पूरे वर्ल्ड वाइड आदमी 4 बार फूड लेता है। एक मॉर्निंग में करता है, ब्रेकफास्ट करता है, एक आफ्टरनून में, दैट इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से लंच। फिर क्या देखते हैं? बीच का एक समय होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रंच। और फिर लास्टली क्या होता है? डिनर। ये 4 चीजों को आपने देखा। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्ट्स क्या है? व्हाट आर द फंडामेंटल फैक्ट्स? द फंडामेंटल फैक्ट्स आर फूड एंड दिस फूड प्रोवाइड यू लाइफ, और इसी के ऊपर आप जीवित रहते हो, लाइफ। लेकिन इसके पीछे एक मैकेनिज्म छिपा हुआ है जिसको आप नहीं जानते हो, और उसी चीज को डेवलप करना है टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगा। तो व्हाट इज दैट? उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज लैगिंग बिहाइंड दैट एंड द कॉन्सेप्ट इज व्हाट? हाउ यू कैन सर्वाइव। तो सर्वाइव करना एक कॉन्सेप्चुअल आइडियाज है, और वो कॉन्सेप्चुअल आइडिया किससे जुड़ा है? फूड से जुड़ा है। अब इस फूड की जो चीजें हैं इसके साथ एप्लीकेशंस भी है और कॉन्सेप्ट भी है। तीनों चीजें इसके साथ में कॉन्टेम्प्ररी भी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है, इशू है कि मैं चारों चीजों से इसको जोड़ रहा हूं। When we talk about the food, इसका मतलब है, अगर मैं फिर आप लोगों से अगर सवाल पूछूं कि फूड को डिफाइन करो, तो अगेन फूड को डिफाइन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर मैं सवाल करूंगा कि फास्ट फूड क्या है, जंक फूड क्या है, आपको डिफाइन करना मुश्किल होगा। लेकिन सिंपली यहाँ पे वक्त कम है, जानना होगा फूड का मतलब क्या है। इसको खाने से एनी ईडेबल मटेरियल, यानी खाने वाला जो ईडेबल मटेरियल है, जिसके खाने के बाद आपको एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी आपके शरीर के लिए जरूरी चीज है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड। लेकिन इसकी बात क्या नजर आती है कि जब मॉर्निंग में आप खाते हो तो बहुत ही लाइट होता है खाना, नाश्ता आपका, जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। जब लंच खाते हो तो ये पूरी तरह से हेवीली होता है, डेवलप्ड होता है, और इसमें पूरी न्यूट्रिशन भी आपको होते हैं, दैट इज कॉल्ड लंच। फिर आप देखते हैं क्या है? ब्रंच है। ये कहा जा सकता है कि ये बीच का सेक्शन है जो 5 और 6 बजे के बीच होता है, लाइट लेते हैं। एंड फाइनली डिनर क्या होता है? एम्प्टी स्टमक नहीं खाते, एक लाइट फूड लेकर के आप खा जाते हैं। और क्या देखते हैं? ये पूरा के पूरा आपके लाइफ साइकिल में ये चीजें चलती हैं।
तो फूड क्या है, यहाँ पे फैक्ट्स है, और इस फैक्ट्स के साथ में क्या छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है, जब आप 45 डेज के बेबी होते हो और जब आपकी उम्र 90 प्लस हो जाती है, तब तक फूड का कंटेंट बदलता चला जाता है। द कंटेंट ऑफ द फूड ऑलवेज चेंजेस। जब आप बचपन में हो तो फूड का कंटेंट अलग है, जब यंग होते हो तो फूड का कंटेंट अलग है, जब मेल हो जाते हो, मैरिड होते हो तो फूड का कंटेंट अलग है, जब आप 60s की एज में जाते हो तो फूड का कंटेंट अलग है, जब 70s में आते हो जिसको सेप्टाजिनेजियर कहते हैं, फूड का कॉन्सेप्ट अलग है। तो क्या देखा हम लोगों ने, इस फैट्स के चीज में एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, और इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग कहते हैं कि दिस अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव टू डेवलप ओवर देयर। और इस कॉन्सेप्ट का पूरा की पूरा कंडीशन, अगर आप हमसे सवाल करते हो कि सर क्या कारण है कि ब्रेकफास्ट अलग होता है, लंच अलग होता है, ब्रंच अलग होता है, डिनर अलग होता है, तो मैं जवाब दूंगा कि ये बॉडी का स्टेट ऑफ कंडीशंस है। इस कंडीशंस में अगर इस टाइप के लाइट फूड लोगे तो यू वुड बी फंक्शनिंग, योर बॉडी वुड बी फंक्शनिंग वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी, यू कैन से हेवीली, इफेक्टिवली। फिर सवाल उठता क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, आपका अदर सिस्टम स्ट्रांग होता है, वेरिएशन हो जाता है, चेंजेस होते जाते हैं, तो एप्लीकेशन बदलता चला जाता है। यही नहीं, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कंट्री टू कंट्री दिस एप्लीकेशन यूज्ड टू चेंज। और इसी तरह से जो कोरोना का मैग्नीट्यूड है, हिंदुस्तान में अलग है, लंदन में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, अमेरिका में अलग है, हर जगह अलग स्ट्रेन है, अलग मेडिसिन है, लोगों की रेजिस्टेंट कैपेसिटी भी लोगों की अलग अलग है। दिस इज व्हाट वी कैन से दैट कॉन्टेम्पररी पार्ट, द एप्लीकेशन पार्ट। और एप्लीकेशन पार्ट में जो अभी मैंने बात की, ये वेरी करेक्ट। एक आदमी का डाइट अलग अलग होगा, हर एक आदमी का डाइट अलग होगा, मेल का डाइट अलग होगा, फीमेल का डाइट अलग होगा, बूढ़े का डाइट अलग होगा, बच्चे का डाइट अलग होगा, हिंदू रिलीजन का डाइट अलग होगा, जैन रिलीजन, हिंदू में भी सेक्ट है, जैन रिलीजन का डाइट अलग होगा, मुस्लिम का अलग होगा, क्रिश्चियन का अलग होगा, हर का फूड हैबिट भी अलग होगा, क्योंकि उनका कल्चर अलग है। तो आपने ये चीज समझा या नहीं समझा कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, कि फूड का रिलेशन कल्चर से भी है, फूड का रिलेशन रिलीजन से भी है, फूड का रिलेशन उम्र से भी है, फूड का रिलेशन किससे है, क्लाइमेटिक कंडीशन से भी है, ज्योग्राफी से भी है। और ये पूरी की पूरी चीजें आपको इस अंडरस्टैंडिंग में पढ़नी होगी, समझनी होगी। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मैंने R&D किया है, कि बच्चों का 1% से भी परसेंटेज पास करने में कम है। बच्चे डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या कोई सी भी हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, हर जगह बात उठ रही है, क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो बदल रहा है, जुडिशरी का फंक्शन है वो बदल रहा है, जुडिशरी फंक्शन नहीं कर पा रही है। अभी कोरोना के पीरियड में मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट क्या नजर आता है, फेलियर नजर आता है। तो ये सारी चीजों को आप तभी समझ पाएंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, रीजंस क्या है। ये चीजें फैक्ट से जुड़ी है, ये चीजें कॉन्सेप्ट से जुड़ी है, ये चीजें एप्लीकेशन से जुड़ी हैं, ये चीजें कॉन्टेम्पररी से जुड़े हैं। अगर आप हमसे सवाल करोगे, है तो बहुत चैलेंजिंग सवाल का जवाब अगर हमसे पूछना चाहोगे, और बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि मेरा पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो रहा है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फेल हो रहा होगा, तो मैं उसका एक ही जवाब दूंगा कि फेल नहीं हो रहा है, कमियां हैं, प्रॉब्लम है। कारण क्या है कि सारा का सारा मेरा एक्सपोर्टेड आइटम, मैंने जो चीजों को ली है बाहर की चीजों को ली है, और अब तक इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे भारतवर्ष में कॉन्स्टिट्यूशन का भी नहीं हो चुका है, इतने सारे राइट्स से नहीं हो चुका है। अभी एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग बहुत हद तक फेलियर हैं, और कॉन्टेम्पररी का सामना करने में हम लोग तैयार नहीं है, जिसके कारण ये चीज फेल हो रहा है। आपके देखिएगा ऐसे में कोविड से रिलेटेड सवाल जरूर होगा, और वो ऐसे का एक सबसे मेजर सेक्शन बनता है जिसकी मैं चर्चा करूंगा। My friend, I feel like that you must have clear regarding that what I mean to say, what I want to say regarding this brief information about this part of that, what you have to understand। आपको अपने पढ़ने के अप्रोच को बदलना होगा। आप जो लोग भी पीटी की तैयारी कर चुके हैं, whosoever already prepared themselves for the PT examination, they should have to slightly bring out the modification over here, and for that modification I will conduct time to time classes over there। Okay,
दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, जिसको कहने की बात मैं करूंगा, जिसको कहने की चर्चा की बात मैं करूंगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आए हैं, मैं इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मैं पहले चीजों को बता दूं, कंडीशंस को बता दूं, कंडीशंस को मैं क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा, मैं पहले अपनी चीजों को बता दूं, उसके बाद आगे मैं बात करूंगा इस चीज को बात में। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें जो कंडीशंस नजर आता है, पहली चीज क्या है, जिस चीज की चर्चा करके मैं बता रहा हूं, जिसको मैंने शोध किया, ताकि आप कहेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सोर्सेस टू डिस्कस द ऑल फेसिट्स ओवर हियर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा, अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस ओवर द ईयर्स। और यहाँ पे टर्म इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, ओवर द ईयर्स। हर साल यूपीएससी में 10% का ये मॉडिफिकेशन होता है कि ट्रेंड्स ऑफ क्वेश्चंस को जरूर बदलते हैं, इसके डायनामिक्स को जरूर बदलते हैं। क्यों बदलते हैं, आप सवाल कहिएगा कि व्हाई द क्वेश्चंस डायनामिक्स यूज्ड टू चेंज एंड व्हाई इट इज नेसेसिटी टू चेंज द मैकेनिज्म। रीजन इज दैट द थिंग्स आर चेंजिंग। हर दिन एक चेंज में परिवर्तन हो रहा है। एवरी टाइम the things going to be changing, and it is called what we can say dynamic। और डायनामिक इसलिए हम लोग कहते हैं, द टर्म इज द टर्म ऑफ व्हाट फिजिक्स का ये टर्म है डायनामिक्स। मतलब क्या है, पूरा के पूरा ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। जब ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा तो क्या देखेंगे, क्लाइमेट चेंज से लेकर के वेदर चेंज से लेकर सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो आपके लाइफ सिस्टम में भी चेंज होगा। लाइफ सिस्टम में चेंज होगा तो पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंज होगा। दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन से अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म क्या है, परिवर्तन होगा। यूपीएससी का ट्रेंड है, ये परिवर्तन होगा। इसलिए परिवर्तन होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में भी हमेशा चेंजेस, परिवर्तन होता है। इसीलिए मैंने टर्म ये इस्तेमाल किया है, द टर्म आई हैव यूज्ड ओवर हियर, ईयर ओवर ईयर परिवर्तन होगा। दूसरी चीज क्या जानना पड़ेगा, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चंस के नेचर को समझना होगा, क्वेश्चन के कैरेक्टर को समझना होगा। एंड द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द क्वेश्चन कैन बी चेंज एंड कैन बी अंडरस्टैंड with the contemporary part of that, with what we can say contemporary part of that, contemporary part। तो आप सवाल करेंगे ना कि जितना भी डिसिप्लिन है एकेडमिक सिस्टम का, जिसमें ह्यूमैनिटीज है, जिसमें साइंस है और जिसमें कॉमर्स जैसी चीजें हैं, वो डेली के डेली ऑथर तो बुक लिखेंगे नहीं, हर दिन तो लिखेंगे नहीं। एक बार कोई किताबें लिखी जाएंगी तो शायद उस किताब का रिव्यू 2 साल 3 साल के बाद किया जाए, लेकिन यूपीएससी परिवर्तन लाता रहेगा, चेंजेस करता रहेगा। इस चैलेंज को कैसे आप स्वीकार करेंगे, इस चैलेंज को कैसे फेस करेंगे? जो इस चैलेंज के ट्रिक मैकेनिज्म को जानेगा, हु कैन अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस ट्रेंड, they can sure, I can assure that he can crack the UPSC examination 100%। मैं चैलेंज करता हूं और मैं ये आश्वासन देता हूं आप लोगों को, प्रैक्टिकली में they can do this part of that। तो नेचर ऑफ कैरेक्टर क्वेश्चंस का क्या है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। इट इज ऑलवेज चेंजिंग का मतलब क्या नजर आता है, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। कोविड-19 has transformed the world over there। इसने पूरी की पूरी दुनिया को बदल दिया। इसके दुनिया के परिवर्तन के लाने के कारण एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी प्रचलन में आ गया है, जो हर आदमी जान रहा है। एक कहा जा सकता है, एक सर्वेंट से लेकर करके एक टॉप इंटेलेक्चुअल भी एक चीज जान रहा है, समझ है उसकी। टर्म क्या बार बार आ रहा है, लॉकडाउन। अब तक हम लोग लॉकअप की बात करते हैं, ये कॉमन प्रचलित हो गया, ये टर्म आ चुका है लॉकडाउन। लॉकडाउन क्यों आया, लॉकडाउन के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। जब लॉकडाउन एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इसके पीछे में ये फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे में क्या छिपा हुआ तथ्य है, इसके पीछे में छिपा हुआ एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे किसी भी आदमी को एक शब्द आता है कि भाई आज यहाँ पे लॉकडाउन हो गया, द टर्म इज व्हाट, लॉकडाउन। जैसे लॉकडाउन की बात नजर आती है, पता ये चलता है कि आपका ट्रैफिक सिस्टम, आपका ट्रैफिक चेक हो जाएगा, आपका ट्रैफिक बंद हो जाएगा। फिर क्या नजर आता है कि आपके पास मोबिलिटी बंद हो जाएगी। फिर क्या नजर आ जाता है, आपको एक पास या परमिट लेना होगा।
कर्फ्यू का कंडीशन पे हो जाता है। इस कॉन्सेप्ट के आते ही पूरा के पूरा मैकेनिज्म बदल जाता है और आपके दिमाग में एक ही चीज आ जाती है, सेफ एंड सिक्योरिटी। और अभी जो भी व्हाट्सएप मैसेज चल रहा है उसमें एक ही टर्म को यूज कर रहे हैं, स्टे सेफ। अब सवाल उठता क्या है, क्या पहले क्या स्टे सेफ थे या नहीं थे? पहले भी स्टे सेफ थे, लेकिन पहले का जो स्टे सेफ था उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर अलग था, अभी का चीजें अलग है। तो दैट इज वाई, तो आपके मेरे इस सवाल का जवाब, इसके एक्सप्लेनेशन का आंसर क्या है, व्हाई इट इज नेचर एंड कैरेक्टर इज चेंजिंग, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट द मॉडलिटी इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज ओवर देयर। मॉडलिटी में भी परिवर्तन आ रहा है, व्यवस्था में भी परिवर्तन आ रहा है। दैट इज वाई यूपीएससी इज बाउंड टू चेंज दिस पैटर्न ओवर देयर। और जो लोग मोटी मोटी पुरानी गाइड और किताब को लेकर के पढ़ रहे हैं, उनका पढ़ा हुआ बच्चे रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज की बात करोगे हर एक चीज में चेंज है। और जो सबसे मेजर चेंज हो रहा है हम लोगों में, व्हाट इज इंपॉर्टेंट चेंजेस हैज टेकन प्लेस, जो नेचर और कैरेक्टर में है, मैन मेड एनवायरमेंट। अभी का जो एनवायरमेंट है हम लोगों का, वो क्या है, पूरी तरह से इट इज कंप्लीटली मैन मेड। और मैन मेड एनवायरमेंट का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है वो किस चीज पर पड़ता है, कंप्लीट पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर। तो जब इस पे इंपैक्ट पड़ेगा तो क्वेश्चन का नेचर चेंज होगा या नहीं होगा, आप बता दो हमें। तो दैट इज द रीजन व्हाई यूपीएससी ऑलवेज मेक द मॉडलिटी ऑफ चेंज ऑफ 10%। कभी कहते बच्चे क्या है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ था, पिछली बार से इकोनॉमिक्स टफ आ रहा है, हिस्ट्री में कल्चर टफ आ रहा है, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टफ आ रही है। ये टफ नहीं है, ये चेंजिंग मॉडलिटी के हिसाब से नेचर और कैरेक्टर में चेंजेस है। इज इट क्लियर अबाउट दैट टू? और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के ध्यान में रखना पड़ेगा, जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो 4 पैटर्न पे बना हुआ है। पहला पैटर्न है एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या कंडीशंस होता है, आप बचपन से ये देखते हुए आ रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं डायरेक्टली, एंड यू हैव टू करेक्ट वन, दिस वन। आपको समझ में आता है कि दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। किसी ने इसके बारे में सोचना नहीं शुरू किया है कि ऐसे सवाल पूछने का उसके पीछे उद्देश्य क्या। दूसरा क्या है, लेवल। दूसरा जो कंडीशंस नजर आता है जब एमसीक्यू की बात क्या देखते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु नजर आता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है, ये आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताता है। दूसरी चीज क्या बताता है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट दैट द लेवल ऑफ एक्यूरेसी, हाउ एक्यूरेट यू आर। और तीसरी चीज क्या बताता है, व्हाट आर द थर्ड थिंग यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट इज दैट the major third thing is that time management within the specified time, whether you are capable to solve it or not, this is the major part you should have to understand about it. And the third one, जो nature questions का आ रहा है, वो क्या देखते हैं, वो आता क्या है, statement based question। जो दूसरे क्वेश्चन का नेचर क्या नजर आता है, ये statement based question। और statement based questions में क्या हो रहा है, वक्त कम है, आगे मैं बता दूंगा। नॉर्मली 2 या 3 स्टेटमेंट होते हैं और पूछा क्या जाता है कि ये घटना इससे घटी थी, ये घटना घटी थी, फिर पूछा जाता है ये घटना घटी थी। सवाल होता है कि ये सही है, पता चलता है कि ए और बी दोनों सही है, पता चलता है 2 और 3 सही है, और अल्टीमेटली होता है कि तीनों भी सही है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। और इससे क्या पता चलता है, क्या जानकारी मिलती है आपकी, द डिसीजन मेकिंग। वन ऑफ द मेजर थिंग विच रीच टू द कंक्लूजन इज दैट व्हाट वे यू आर गोइंग टू मेक योर डिसीजन। तो ये चीज क्या बताता है, इस चीज को क्लियर कट आप जान जाओ। एमसीक्यू का उद्देश्य क्या है एग्जामिनर का, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप कितना है। दूसरा पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में आप कितना एक्यूरेट है, या फिर आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या हो जाती है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। ये इंपॉर्टेंट चीज नजर आ जाता है। और जो तीसरी चीज नजर आती है आपको, वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। सो द 3 थिंग्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट, द नेचर ऑफ द फर्स्ट वन, नेचर ऑफ द क्वेश्चंस है, एमसीक्यू की बात करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट। तो दिस इज, और जो सेकंड नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की विशेषता क्या नजर आती है, दे शोज अबाउट व्हाट, दे शोज अबाउट योर एक्यूरेसी, व्हाट वे योर डिसीजन मेकिंग इज वेरी स्ट्रांग, व्हाट वे यू कैन कॉम्प्रिहेंड। यहाँ कॉम्प्रिहेंड का मतलब क्या होता है, if 3 lines are given to you, if 3 lines are given to you and what inference you draw, इस 3 लाइन का आप इंफ्रेंस क्या निकालते हो, दिस इज द पार्ट ऑफ दैट टू। एंड दिस इज द मेजर चैलेंजिंग, इसको कहा जाता है स्टॉपर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉपर।
स्टॉपर का मतलब क्या है? आपको रोकने की तैयारी यूपीएससी कर लेता है कि आप किसी चीज में इन्फ्लुएंस कायम कर सकते हो या नहीं, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तो you have very least time to take your decision after going through a paragraph kind of things too. अगर सरकार द्वारा कोई एक इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाता है, उसको कितना जल्दी आप पढ़ करके एप्लीकेशन कैसे लागू कर सकते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर दे। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसके साथ में नजर आता है, ये एक इंपॉर्टेंट इश्यूज। और तीसरी क्वेश्चन क्या होती है, उसको कहते हैं मैचिंग। एक कॉलम है, दो कॉलम दिया गया है और इस दो कॉलम में मैच करने की बातें कही जाती। व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस वन? हाउ यू कैन मैच द थिंग। किस प्रकार से इस चीजों को हम लोग, किस प्रकार से हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं, या कहा जा सकता है कि किस तरह से इस चीज को हम आसानी से यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन किस प्रकार से हम लोग काम में ला सकते हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। दैट इज द कंडीशंस रिगार्डिंग दैट। उसके साथ में ये चीज नजर आती। और इसमें जो सबसे बड़ा फैक्ट, फंडामेंटल चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज क्या है? दो कॉलम दिए गए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल जो प्रेजेंट चलन में जो चीज आपको नजर आ रहा है, एक टर्म नजर आता है बाई इलेक्शन। अगर एक टर्म दे रहा हूं बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन शॉर्ट में लिख रहा हूं, और इसके साथ मैचिंग मेंशन किया गया है कि 5 साल के बाद बाई इलेक्शन होता है, 2 साल के बाद इलेक्शन होता है, या किसी भी एक कहा जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव के बाद, मर जाने के बाद जो इलेक्शन होता है बाई इलेक्शन होता है। इसको मैच करने की प्रक्रिया होती है। और मैचिंग इसलिए दिया जाता है कि हाउ कैपेबल यू आर टू टेक द डिसीजन ऑन ए यू कैन से इक्वल फुटिंग और करेक्टली। और जो चौथा सेक्शन आजकल पूछा जा रहा है, बार बार ये सवाल पूछा जाता है, एक कॉम्प्रिहेंशन है, यानी बहुत लंबा पैराग्राफ है, बहुत लंबा पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ को आधा पढ़ते पढ़ते आप थक जाते, और बहुत सबसे सिंपल सवाल होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप थक जाते हो, आपका मेंटल एप्लीकेशन बंद हो जाता है, एंड यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू मेक ए करेक्ट आंसर ओवर देयर। एक लंबा पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के साथ में 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, और उसमें से चुनना है, यू हैव टू सेलेक्ट दैट व्हिच वन इज द करेक्ट। और पिछले लगातार ये क्वेश्चंस लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है। तो दीज आर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द क्वेश्चन, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। देखिए, क्योंकि आप सभी पढ़ रहे हैं, यहां तक कि आप किसी में से, आप लोगों में से कोई भी, someone must have faced 2 or 3 times for the UPSC kind of examination too। सब लोगों ने इसके बीच में कहा जा सकता है कि कई प्रकार के सवाल या जवाब या चीजों को आपने पढ़ा होगा। तो कहने का मेरे उद्देश्य क्या है कि उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऑफ लॉ, जिसके लिए मैंने ये चर्चा की है या वेबिनार बनाया है, ताकि आपने इतने दिन से जो पढ़ा है उसको आप रिजल्ट में कन्वर्ट कर सको। दिस इज द मेजर मोटिव बिहाइंड दैट। अब मैं आपके पास सामने, नाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज अबाउट द होलिस्टिक थिंग रिगार्डिंग व्हाट वी कैन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इट हैज बीन टेकन आउट ऑफ व्हाट वी कैन से 7 इयर्स का एनालिसिस हमारे पास है। और इस 7 ईयर के एनालिसिस में जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं, आई हैव रीच्ड टू द कंक्लूजन ओवर देयर दैट you can make the thing in a very clear cut manner, that you can crack it very easily without doing more effort and without doing more activities over there। उस conditions में जो चीजें नजर आ रही है वो क्या है? What is important and significant part you can find over here? What is important thing you can find over here? जो सबसे important चीज की चर्चा करेंगे या बात सामने नजर आती है, वो क्या नजर आती है? Total number of question, H का मतलब यहाँ क्या है? History है। This is second one is what? Geography. The third one is what? Polity. And the fifth one is what we can say? Economics. These are the part I have taken over here. These are the section I have taken over here. और ये क्या? Economy. And this is called 4 major commandments, and this is also called 4 major pillars of success over there. आपको ये 4 चीजों को आप छोड़ नहीं सकते हो। And why? अब सवाल आप करोगे कि why it is important part over there? अगर सवाल आप करते हो कि why all these fundamental parts are there, why it is important part over there, इसको जानना जरूरी क्यों है, why it is important and necessary to know over there। तो सबसे important पहलू की बात करते हैं, why examination it is important for your preliminary, then it is important for the mains examination, it is important for essay, and it is also important for your interview।
it is also important for your interview. और पूरी की पूरी यूपीएससी स्ट्रेटेजी में दो चीजों का बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रख लो, जिसपे 90% नेग्लिजेंसी देखी गई है। ये मेरे तजुर्बे के अनुसार है, R&D यही बताता है। 90% people you neglect what essay you complete, and you have a concept, you have a thought process in your mind since my childhood. I am essay, and what type of essay आपको पता क्या है? The cow is a four-footed animal. गाय चार पाया जानवर है वो। ऐसे का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ये बैठा है, इसलिए at the 11th hour you start reading over here. This is the most neglected part of that. जबकि एक आपका ये fifth, आप इसको मानोगे, this is the fifth according to the चाणक्य। ये गाड़ी का 5वां पहिया है और ये भी 250 नंबर का होता है, जिस चीज को आप ध्यान रख करके चलोगे। अगर जिसने ऐसे को कवर कर लिया तो यूपीएससी में कभी बैक नहीं होगा, उसको कोई ना कोई पद जरूर मिलेगा। और जिसने इंटरव्यू को ठीक कर दिया तो उसको मतलब है कि 100% अश्योरेंस है कि यूपीएससी को तैयार करेगा। तो माय मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट, मेरे इस 4 पिलर को बताने के पीछे उद्देश्य क्या है, इसके कोर में अगर आप जाते हैं 4 पिलर के, तो दिस इज द कोर ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो कोर मैकेनिज्म है, ये पूरा के पूरा मैकेनिज्म इस 4 पिलर के ऊपर में आधारित है। और इस 4 पिलर के ऊपर जो आधारित चीज की बात मैं करूंगा, व्हाई इट इज द कोर पिलर ओवर दैट, इट इज व्हाट, इट इज मेजर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री नहीं कर करके मैं आपको सवाल का इस्तेमाल करूंगा ह्यूमैनिटीज। इसका वन ऑफ द सेक्शन है, वन ऑफ द सेक्शन इज व्हाट इट इज कॉल्ड हिस्ट्री, वन ऑफ द सेक्शन इज व्हाट इट इज व्हाट पॉलिटी, and one of the section is what we can say the part of geography is also there. तो इस sections में जो हम लोगों ने पीटी में स्पेसिफाई कर दिया है, हिस्ट्री किया है, ज्योग्राफी किया है, पॉलिटी किया है, इकोनॉमी किया है। Why it is, अब सवाल उठता है कि इतने बड़े सेक्शंस में इस 4 चीजों को क्यों लिया गया। अब सवाल करोगे ना कि इसको मैंने 4 पिलर 4 पिलर का नाम क्यों दिया, तो मैं आपको जवाब दूंगा, दिस इज द कोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये मेरे पूरे के पूरे सिस्टम का जो मेरा पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब जो पॉलिटिकल इंडिया है, और पॉलिटिकल इंडिया का मतलब क्या है, जो भारत देश है, भारत देश की पूरी व्यवस्था इन 4 चीजों के ऊपर निर्भर करती है। हिंदुस्तान में कोई भी डिसीजन, कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था जब बनाई जाती है, कार्यान्वित की जाती है, these all 4 fundamental things are considered seriously। इन 4 चीजों को जरूर लिया जाता है। और इन 4 चीजों को लेने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। आप एक छोटी सी बात मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं। अगर मैं सवाल करता हूं कोविड, नाम सुना है ना आप सभी ने, कोविड, कोई किसी को डाउट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पहलू मैं रख रहा हूं आपसे, मैं सवाल कर रहा हूं कि ये क्या पॉलिटिकल इश्यू है, ये क्या इकोनॉमिक इश्यू है, ये क्या सोशल इश्यू है, ये क्या साइंस का इश्यू है, ये क्या कल्चर का इश्यू है, ये क्या रिलीजन का इश्यू है। आपका जवाब क्या होगा, व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका जवाब क्या होगा, बच्चे जल्दी से जवाब दो, आपका जवाब क्या होगा, व्हाट वुड बी आंसर। ये पॉलिटिकल इश्यू है, ये इकोनॉमिक इश्यू है, ये सोशल इश्यू है, ये साइंटिफिक इश्यू है, ये कल्चरल इश्यू है, ये रिलीजियस इश्यू है। ये कौन सा सवाल होगा, जल्दी से जवाब दो आप हमें। वुड यू आंसर मी? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सर। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। आ गए ना मुद्दे पे। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल में फिर मैं सवाल आपसे पूछा कि इन विच इट इज द मोस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, इन सबों में से सबसे इंपॉर्टेंट किस में होगा, क्या जवाब दोगे? सोसाइटी सर। क्या? सोसाइटी। ये सबसे बड़ा जो इश्यू होगा वो पॉलिटिकल इश्यू होगा। पॉलिटिकली सोसाइटी को कंट्रोल करने वाला जो मैकेनिज्म है वो आपका पॉलिटी। सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब है फंडामेंटल राइट्स,
सोसाइटी का मतलब क्या है? डीपीएसपी। सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, और क्या देखते हैं? ड्यूटीज। ये ड्यूटी है या नहीं है स्टेट की? ये बता दो। ये स्टेट की ड्यूटी नहीं है रॉबिन, ये ड्यूटी ऑफ द मैनकाइंड भी है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट्स, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्टिव्स। अब देखो डायरेक्टिव्स कैसे, फिर यहां पे सवाल यूपीएससी का उठता है, ये डायरेक्टिव कैसी है? अभी मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग बुलाई थी, किसके लिए? जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। क्यों? कि ये डायरेक्टिव इश्यू का अधिकार हर एक स्टेट को है। हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर समझता है कि वहां कोविड की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? टेल मी फ्रैंकली, यस और नो? जी सर। सो योर अप्रोच शुड बी मल्टी डायमेंशनल। आपका अप्रोच क्या होगा? आपका अप्रोच मल्टी डायमेंशनल होगा। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आप जो पढ़ रहे हो उसके पीछे कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी यह शब्द आपके दिमाग में आए तो आपको एक बार इंटरफेस कर लेना होगा कि इसका ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, इसका पॉलिटिकल रीजन है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं रॉबिन, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, कि सबसे ज्यादा किस स्टेट्स में है, तो क्या जवाब दोगे आप? महाराष्ट्र। क्यों है? सर एयरपोर्ट से वहां पे। बिल्कुल नहीं, ज्योग्राफिकल कंडीशन समझो। यस सर। महाराष्ट्र का क्लाइमेटिक कंडीशन समझो। महाराष्ट्र की डाइवर्सिटी देखो, इंटरेक्शन लोगों का सबसे ज्यादा है, स्टेट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेट के लोग महाराष्ट्र में हैं, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने के, और दुनिया के हर कंट्री के लोग सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं। और महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल मैकेनिज्म है, कंट्रोल है, उनके लिए वो उपयोगी नहीं है। हर प्रकार की चीजें हैं। तो क्या कंडीशन लगा हुआ है? ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, सोसाइटी और कल्चर से भी रिलेटेड ये चीजें हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। पीरियड में जाओगे तो महाराष्ट्र के लिए कानून अलग था, महाराष्ट्र के लिए व्यवस्था अलग था। मैं आगे की चर्चा बात करूंगा। तो कंडीशंस का ध्यान में रखना है। व्हाट थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड? द कंडीशन इज दैट you should have to go through history, you should have to go through geography, you have to go through quality and economy। ये सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तो यूपीएससी का डायनामिज्म, ये बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, सर क्या कारण है कि यूपीएससी ने क्वेश्चंस को आज तक रिपीट नहीं किया है? उसका जवाब क्या है? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डायनामिक सिस्टम। हर एक चीज एक डायनामिक सिस्टम पे है, हर एक चीज में परिवर्तन काशीलता है, जिसके कारण चेंजेस है, उसी के हिसाब से यूपीएससी का पैटर्न बदलता है। आप यूपीएससी के 10 साल का क्वेश्चन का इवैल्यूएट कर लो, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन किसी हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में या करंट अफेयर्स पे पूछा गया है, उसका संबंध उस वर्ष सबसे ज्यादा अगर चर्चा की गई है, कल्चर पे की गई है, तो सवाल पूछ देता है क्या? हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगर साइंस से है तो क्वेश्चन साइंस से पूछता। अगर इकोनॉमी में पिछले 2 साल से टफ क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं? जीएसटी के साथ में बहुत सारी चीजें नोटबंदी में आई, वर्ल्ड बैंक से लेके बहुत सारी चीजें हुई, प्राइवेटाइजेशन से लेके लिबरलाइजेशन तक बहुत सारी पॉलिसीज में चेंज आई, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट एंड चेंजिंग। इट इज नॉट द डिफिकल्ट, it is the contemporary part of that. So that way you should have to pay stress over there, and that is the reason I told you this part of that. And why it is 4 pillar of success? Because if you prepare yourself for the PT examination, you are also going to, और आपके लिए सबसे आसान इन दिनों जो पीटी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मैं चैलेंज करता हूं, उनका मेन पहली बार में निकालूंगा मैं। दिस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स, एंड दिस इज मास्टर्स एकेडमीज का ये पहला प्रॉमिस होगा कि उसे निकालेगा बच्चा 1-to-1 फोकस कर करके। क्योंकि पीटी जहां निकलता है, दिस इज द मेजर चैलेंजिंग हर्डल फॉर लास्ट 5 ईयर। 5 साल में ये बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है, तो उसका सामना करना। तो नाउ you have to pay stress over there. मैं उसका एक खाका दे रहा हूं। I am going the brief idea regarding that, how it is going to be succeeded over there. इस साल आप सबों को पता है कि जनरल जो मार्क्स आए थे, जो जनरल का जो कंडीशंस था, वो 98 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन का जो अगर रेशियो इस बार का आप देखेंगे तो क्या उसमें खास बात निकल करके आती है? 98 मार्क्स, जिसको कहा जाता है जिस पे फाइनल सिलेक्शन हुआ। अगर ओबीसी की बात करते हैं, जो ओबीसी का डेटा बताता है, ओबीसी का डेटा बताता है 95 मार्क्स का। ओबीसी का जब डेटा हम लोग देखते हैं तो ओबीसी का जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इट इज व्हाट 95 पॉइंट, इट इज व्हाट 95 पॉइंट
इट इज 34.34%, ये ओबीसी का है। उसके बाद तीसरा क्या देखते हैं, शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल कास्ट का ध्यान से आप लोग देखना, जो भी होंगे उसका सिलेक्शन हुआ है 82 क्वेश्चन करेक्ट करने पे। और जो शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे हैं आप लोग ध्यान से देखना, उनका सिलेक्शन हुआ है 77.34%, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो दिस इज द कंडीशन ओवर देयर, समझ गए। 98 क्वेश्चंस का मतलब आप अच्छे से समझते हो, 50 से कम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रॉबिन, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा 50 से कम में? तो क्यों नहीं फोकस करोगे, रादर देन अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चंस, आप 50 क्वेश्चन को 100% बैलेंस करना होगा। नाउ कम टू द पॉइंट ओवर देयर। 2014 में कितने सवाल पूछे गए हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में 50 क्वेश्चन। 2015 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 54 क्वेश्चन। 2016 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 47 क्वेश्चन। 2017 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 51 क्वेश्चन। 2018 में कितने पूछे गए हैं? 52 क्वेश्चन। 2019 में कितने पूछे गए हैं? 60 क्वेश्चन, 120। और अभी क्या देख 2020 में क्या देखते हैं? 62 क्वेश्चन है। और 62 क्वेश्चंस में आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट करने हैं? 19। आप इमेजिन कर लो कि हालत क्या खराब है। आप समझ लो कि 82% यानी शेड्यूल कास्ट जो बच्चों को कंसीडर कर रहा पड़ रहा है, उससे भी कम मार्क्स आपको लाने हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जा रहा है। इज इट फैक्ट और नॉट? देखिए ये फैक्ट है, इसलिए मैंने इस इश्यूज को सामने आप लोगों के लाया है ताकि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी कंडीशंस पे नहीं हो। एंड दैट इज माय व्हाट वी कैन से कंसीडरेशन ओवर देयर that you should have to go by this way। इस हिसाब से आपको आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो this is why I told you that this section is going to make you a very purposeful part of that। यहाँ पे मैंने मेंस का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी को कंसीडर नहीं किया है, चूंकि वो आगे का सेक्शन है, अभी पीटी पे फोकस करना है, इसलिए मैंने इस सेक्शन को लिया। इसके अलावा जो अदर सेक्शन है वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का सेक्शन है, एग्रीकल्चर का सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस का सेक्शन है। और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं सही कर रहे हैं आप लोग। अगर बहुत बहुत कम भी करोगे तो कम से कम आप सभी बच्चे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। मेरे कहने का उद्देश्य क्या है? अकॉर्डिंग टू माय डाटा यू शुड हैव टू करेक्ट 50 + 10 यानी 60 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो, यू आर कॉक श्योर टू क्रैक योर पीटी एग्जामिनेशन। और दुनिया की कोई ताकत आपको पीटी एग्जामिनेशन में सफलता पाने से कदापि किसी भी कंडीशंस में रोक नहीं सकेगा। आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर पॉइंट ओवर देयर एंड दैट इज द रीजन व्हाई इफ यू रीड वंस, और यूपीएससी के लिए बच्चा बस आपको एक बार, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ ओनली वंस, नॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ वंस, कीपिंग इन व्यू ऑफ व्हाट? कीपिंग इन व्यू of you can say considering the section of what? Considering a section of history, considering of section of what? Considering the section of geography, polity and economy. And this is the major thing you should have to keep in your mind. I think this must be very much clear to you. Now come to the another phases and conditions over here. Masters offer और जो conditions है, इसमें जो भी प्रोग्राम चला है इसके ऊपर ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। जो काउंसलर है, टीम है, जिसको भी आप पूछोगे वो बता देगा। मैं आगे की बात कर लूं, ये सब सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाई होती है जो भी संस्था में है। अनदर इंपॉर्टेंट फेसेट्स रिगार्डिंग ऑल दैट टू इंटरडिसिप्लिनरी। आप एक फंडामेंटल चीज अपने ध्यान में रखो। एंड व्हाट आर द फंडामेंटल थिंग यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड इज व्हाट? द फंडामेंटल थिंग ऑफ व्हाट? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। व्हाट यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ह्यूमैनिटीज होगा, साइंस होगा, कॉमर्स होगा। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है? कि हेलिक्स है। ये क्या है? हेलिक्स। इसमें कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। अगर आपसे मैं सवाल करूं कि क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्या जवाब होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन टू यू, if I ask anyone can speak to me, nothing to worry about it. If I ask to you that my point is that the concept is what? All these humanities, science and commerce are interdisciplinary and it is all the time interlinked. कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? What should be the answer to you बच्चा? जल्दी से जवाब दो आप हमें। Please let me answer to it. Please let me know why it is not independent at all.
Everyone is independent. Why it is? Everyone is dependent. Everything is independent. No, it is not the correct. Everyone is correct dependent. answer would be it is going to apply to the mankind. ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? Mankind. It is a part of system and this system is applicable to the mankind. हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, या हिंदुस्तान की अगर बात करते हैं, हिंदुस्तान में जो भी काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है? सोसाइटी के लिए, पीपल के लिए हो रहा है. और वो सोसाइटी या पीपल या हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता है? We need the political system, we need the economic system, we need the cultural system, we need the administrative system, we need the law and order. For the complete growth of a mankind, for the complete growth of a country, for a complete growth of a nation, all the fundamental things are required for the mankind. और ये पूरी की पूरी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. तो इन तीनों चीजों की व्याख्या, ह्यूमैनिटीज की बात करें, साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, इन सबों की व्याख्या संविधान के हर एक पार्ट में, हर एक सेक्शन में आवश्यकता के अनुरूप आर्टिकल, शेड्यूल और लॉ के तहत लिखी गई है. और इसके पीछे जो एक सबसे बड़ा तथ्य है, जो बार बार मैं कहता हूं, व्हाट एग्जैक्टली इज द पार्ट ऑफ दैट डायनेमिक और चेंजिंग, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ डायनेमिक इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 400 कहा जा सकता है शेड्यूल आर्टिकल जुड़ चुकी है, एंड ऑलवेज देयर इज एन अमेंडमेंट. Always there is an amendment. Why amendment? अगर सवाल मैं पूछता हूं why amendment is there, तो जवाब होता है it is necessary for the mankind. And if it is necessary for the mankind, it is necessary for the nation. And why it is necessary for the nation? Because a nation has to compete with the other nations of the world. That is the fundamental core part of that. That is the reason why no question can be an independent question over here. Your thought process should be always you can say interdisciplinary, interlinking part of that. Even your whole part of the human body system is what? Interlinking to each other. Even if you talk about whole part of your body, अगर आप पूरे के पूरे अपने शरीर के पार्ट की बात करते हैं, अगर शरीर के पूरे हिस्से की बात आप करते हैं, आपके शरीर के पूरे हिस्से को भी आप देखते हो, मेजरली the all system has been, you can say, segregated under 4 parts. 4 पार्ट में बटा हुआ है. This is the mouth, this is what we can say stomach, this is what feet, and सबका फंक्शन अलग अलग है. और जब ये सब के सब आपस में कंबाइन करते हैं तो आपका सारा काम हो जाता है, रिजल्ट हो जाता है. So this is the way everything has a specific role, a specific function, and you should have to make a synchronization and combination of that. Then the result is going to be out of that too. So you should have to inculcate a habit. आपको एक आदत बनाना पड़ेगा, आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि हर एक चीज को पढ़ते समय इंटरलिंक किया जाए और उसके एप्लीकेशन की बातें सोची जाए. I think this must be very much clear to you. Now come to another aspect, another point over there. So far history is concerned, you know it very well. The program is also given to you. The crash course program जो डिजाइन किया गया है, उसकी विशेषता क्या है कि 150 hours आपके पास हैं. अब तक there is no possibility, what we have assumed about that, there were no possibility of extending the UPSC, you can say, date of prelims examination, but we can guess over here that the interview date has been extended. That so on the basis of that we can guess that there may be a possibility. एक कहा जा सकता है कि एक possibility नजर आती है कि date of examination शायद बढ़ जाए, शायद. I am not sure. I have designed a program. It is program for you calculate it from the 10th of this month also. अगर आप 10 तारीख से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, आपके डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन, 150 आवर्स आर विथ यू. आपके पास 150 आवर्स का समय होगा, और उस 150 आवर्स के समय में द सेक्शन विच कैन बी कवर्ड ओवर हियर, जो सेक्शंस को कवर किया जा सकता है इस पार्ट से, इस कंडीशन से. व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट? हिस्ट्री इज देयर, पॉलिटी इज देयर, geography is there, ecology and environment is there, economic is also there. If you talk about that, we have distributed this part over here. इसको हम लोगों ने इस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि इसको इस हिसाब से लेकर के या पढ़ाई कर करके चल सकते हैं. We can carry it away too. In this connection, what is important part of that?
and what should be the given stress over there. इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की बात होगी वो क्या होगी कि we will pay stress for 60 hours. 60 hours we would like to pay stress for what? All history, all polity, all economy. And again, 20 hours should be given for what? Geography section. So this 80 hours should be given for what? For all the core section over there. And in this section, apart from MCQ, our teaching methodology should be based on that. The conceptual based interlinking process over there, that is the part of that. And apart from that, the rest of the, you can say, rest of the part should be given for the practice part and the section of what? Current affairs, then ecology, environment. Because this section is very much dominating nowadays. ये सेक्शन काफी ज्यादा आजकल डोमिनेट कर रहे हैं. करंट अफेयर्स को आप हटा दो. करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो सबसे ज्यादा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है. किसके लिए है? मैनकाइंड के लिए. उसके बाद कुछ सेक्शन एग्रीकल्चर है कि जो डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग एस्पायरेंट्स आर देयर, बट मेंस का एग्जामिनेशन का स्टडी भी बहुत अच्छा होता है, आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं. दैट इज द रीजन वी ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए. सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. अगर आपको किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मास्टर्स IAS and do subscribe our YouTube channel to get more updates and some other classes also. And you can visit our website www.mastersis.in. We are going to start a crash course for this year's prelim. So 150 hours का प्रोग्राम होगा वो. अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाती है तो the number of hours can vary. So to know more details about this program, you contact on this given WhatsApp.